Hello friends, good morning. Let's start with the subject Management Accounting. TY BCom Semester 5. You know that I start to teach the chapter number 3, Ratio Analysis, and I have already told you that in this chapter you have to learn 22 to 23 formulas. In previous session, I have already discussed some formulas and the remaining formulas I will discuss in this session. And from the next lecture, we will start to do sums. Okay, I hope you remember that in this chapter we have to study the functional ratios. And in previous lecture, I have discussed profitability ratio on the basis of sales and investments. Now in this session, I am going to teach liquidity ratio, leverage or solvency ratio and activity or efficiency ratio. So let's start. Okay. Here given that liquidity ratios. There are 3 liquidity ratios. The very first, that is current ratio. This ratio you have already studied in standard 12th. Now the formula of current ratio is current assets upon current liabilities. Current assets, it means stock, cash balance, bank balance, prepaid expense, right? And current liabilities like creditors, bills payables, एडवांस टैक्स आपने जो पे किया है वो, तो ये सारे इंक्लूड होंगे करंट लायबिलिटीज. सो लिक्विडिटी रेशियो एंड इन दैट द वेरी फर्स्ट दैट इज करंट रेशियो विच whose formula is current assets upon current liabilities, and the standard ratio is 2:1. It means अगर करंट रेशियो 2:1 आता है देन आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन कंपनी की अच्छी है. इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सम करेंगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा. सेकेंड है लिक्विडिटी रेशियो. इसकी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. नाउ लिक्विड एसेट मीन्स व्हाट? Liquid asset is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses. Current asset means stock, debtors, bills receivable, prepaid expense, cash balance, bank balance. These are included in current assets. But in liquid assets, you have to deduct stock and prepaid expenses from the current asset, then you will get liquid assets. And current liabilities, it means creditors, bills payables, advance tax payment जो आपने किया है वो. And the standard ratio that is 1:1. Now liquid ratio वो उसका standard ratio क्यों 1:1 है? Because यहाँ पे हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते. वाई? बिकॉज स्टॉक का कन्वर्जन जल्दी से कैश में नहीं हो सकता. प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो एक्सपेंस आपने इन एडवांस पे कर दिए हैं, उस एक्सपेंस का आप कैश में इमीडिएटली कन्वर्जन नहीं कर सकते. करंट रेशियो का मीन्स क्या होता है कि विद इन द 1 ईयर you have to convert your current assets into cash, right? When the meaning of liquid ratio, liquidity means what? The conversion of current assets into cash nearer to 1 year. So स्टॉक अभी मंदी की सिचुएशन है और आप स्टॉक का टर्नओवर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि आप जल्दी से उसका कैश में कन्वर्जन नहीं कर सकते. इसीलिए लिक्विडिटी रेशियो उसका स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1. 1:1 इट मीन्स व्हाट?
1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 1 रुपए की लिक्विड एसेट्स है। Whereas in current ratio, standard ratio is 2:1. It means 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए you have करंट एसेट्स ऑफ ₹2। 1 रुपीज की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2 रुपीज की करंट एसेट्स है। लेकिन ये रेशियो लिक्विड रेशियो से बेटर नहीं है, बिकॉज इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं। स्टॉक का आप जल्दी से कैश में कन्वर्जन नहीं कर सकते। प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने अगाऊ में पे कर दिया है, अभी आपको कैश की जरूरत है, तो आप उन लोगों के पास कैश जो आपने एडवांस में पे किया है वो नहीं मांग सकते, राइट? एंड द बेस्ट रेशियो ऑफ लिक्विडिटी दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। व्हाई दिस इज बेस्ट रेशियो? लेट अस फर्स्ट सी फॉर्मूला। Acid test ratio is equal to quick assets upon current liabilities. Quick asset means what? Cash plus bank. Quick asset, it means जिसका immediately कैश में कन्वर्जन हो सकता है। Immediately आप बैंक में से कैश ड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। Quick asset यानी कि जब भी आपको कैश की जरूरत है, आपके पास वो हाजिर है। So this ratio is best and the standard ratio is 0.5:1. It means 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए you have the quick assets of ₹0.5. This is the best ratio. करंट रेशियो का मीनिंग है कि विद इन द 1 ईयर उसका कैश में कन्वर्जन करना है करंट एसेट का। लिक्विड रेशियो मीन्स nearer to future, nearer to 1 year. Within the 1 year, you have to convert current assets into cash. But acid test ratio means immediately whenever you need the cash, you can convert any current asset into cash. And इसमें बेस्ट एग्जाम्पल यही है कैश एंड बैंक। और एक एग्जाम्पल आता है इमीडिएटली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में आप ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जिसका आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये लिक्विडिटी के 3 रेशियो आपको याद रखने हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट आता है लीवरेज और सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ लीवरेज रेशियो उसमें 5 या 6 है। स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, नाउ प्रोप्राइटर्स फंड, उसकी फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड को आप ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हो। प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और उसकी फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस लेस फिक्टिशियस असेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि ओनर्स जो मालिक है उसका जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो, तो उसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल। दोनों टाइप की, बोथ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस you have to add in share capital and you have to deduct fictitious assets from this total. Fictitious asset like a preliminary expense, advertisement suspense account, debenture discount account, share discount account, etc. Right? And total assets. Total asset, it means total of the balance sheet minus fictitious assets. नाउ टोटल एसेट्स में से हम फिक्टिशियस असेट क्यों लेस करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट रियल असेट। जब आप रिजर्व और सरप्लस का अकाउंट क्रिएट करते हो, उस बैलेंस को मैच करने के लिए आप ये फिक्टिशियस असेट का अकाउंट ओपन करते हो, यानी कि ये रियल में असेट नहीं है। इसीलिए व्हेन यू टेक द टोटल एसेट्स, यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट and from this total you have to deduct fictitious asset, right? So this proprietary ratio. Next, debt equity ratio.
मोस्ट IMP, इसके बिना सम नहीं आएगा, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। नाउ फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड और टोटल लायबिलिटीज अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। दो फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें न्यूमरेटर में है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इन द अनदर फॉर्मूला न्यूमरेटर में है टोटल लायबिलिटीज, बट इन बोथ द फॉर्मूलाज डिनोमिनेटर सेम है, प्रोप्राइटर्स फंड, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say long term liabilities means in the balance sheet, in the company's balance sheet, long term liabilities के टाइटल में जो भी आइटम्स आती है वो आपको कंसिडर करनी है, लाइक डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, पब्लिक डिपॉजिट है, वो सारे आपको कंसिडर करने हैं व्हेन यू टेक द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बट इन टोटल लायबिलिटीज you have to consider non-current liabilities plus current liabilities, right? यानी कि जब आप दूसरी वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हो देन टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज दोनों इंक्लूड करनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज मीन्स जो मैंने बोला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वही, लाइक डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डेब्ट, public deposits, etc. And current liabilities like creditors, bills payables, advance payment of tax, pre-received income, अगाऊ से आपको कोई इनकम मिली है, etc. Right? Now, here one point you have to keep in mind. No clarification, then use formula number 1. It means whenever there is no clarification regarding the using formula of debt equity ratio, you have to apply, you have to put, you have to use formula number 1, that is long term liabilities upon proprietors fund. Okay, next, capital gearing ratio. This is very most important, very most important ratio, that is capital gearing ratio. Now the formula is capital gearing ratio is equal to preference share capital plus debentures plus long term loans upon equity share capital. Now preference share capital आपको कंसिडर करना है, debentures and long term loans, it means fixed interest and dividend bearing capital. देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको और डिविडेंड किस पे मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिक्स्ड इंटरेस्ट किस पे मिलता है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। सो ऐसी आइटम आपको न्यूमरेटर में लेनी है जिसके इंटरेस्ट या डिविडेंड की अमाउंट फिक्स्ड है, इसीलिए आई यूज द वर्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बियरिंग कैपिटल upon equity share capital, and this ratio जितना भी ये हाई होगा उतना फेवरेबल होगा। किनके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। कैसे, अभी मान लो मार्केट में तेजी की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, तो जितना गियरिंग हाई होगा यानी कि आपकी कंपनी मार्केट में अच्छी तरह से रन कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इक्विटी शेयर वालों को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। बट इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, डिफ्लेशन यानी कि मंदी की सिचुएशन है, तो गियरिंग लो होगा, यानी कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो इन शॉर्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना हाई होगा उतना अनस्टेबल भी होगा। अनस्टेबल क्यों बोल रही हूँ, आप जानते हैं कि जहाँ पे फायदा ज्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। अभी गियरिंग हाई है यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, बट जब गियरिंग लो होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को शायद डिविडेंड ना भी मिले। सो दिस रेशियो में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाई रेशियो होगा तो हम फेवरेबल
लिखेंगे। जब ये सम में अप्लाई होगा आपको इससे भी बेटर वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट रेशियो। नाउ इसकी फॉर्मूला वेरी सिंपल है एंड इजी भी है। फिक्स्ड कैपिटल अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड कैपिटल तो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स्ड एसेट तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, राइट। एंड हियर फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या कंसीडर करना है, तो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे वर्ड यूज किया है फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ यू रिमेम्बर in previous session when I was teaching the formula profitability on the basis of investment, उसमें वेरी फर्स्ट फॉर्मूला थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये फॉर्मूला मैंने यूज की थी, और उसकी फॉर्मूला थी नेट प्रॉफिट EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और इसमें याद रखने को बोला था कि 10% और मोर आएगा देन इट इज फेवरेबल। तो उसमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला आई थी, तो मैंने यहाँ पे यही फिर से टाइप किया है फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू, और आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज लेस फिक्टिशियस एसेट्स। अभी आप बोलोगे हाँ याद आया। देखो एक बात आप ध्यान में रखना, अगर ये सारी फॉर्मूला और ये जो मैंने टेबल प्रिपेयर किया है ये आप अच्छी तरह से लर्न नहीं करोगे देन आपको सम करते टाइम डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। सो ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से रिमाइंड करने हैं। ओके, सो फिर से फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इट मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज लेस फिक्टिशियस एसेट्स। एंड फिक्स्ड एसेट उसका तो टाइटल ही आता है, जिसमें आता है फिक्स्ड एसेट, उसमें नंबर 1 टेंजिबल एसेट, नंबर 2 इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो फिक्स्ड एसेट के टाइटल में वो जो आएगा आपको कंसिडर करना है जो सम में दिया होगा। और एटलीस्ट 1:1 ये रेशियो एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 रुपीज की फिक्स एसेट के सामने आपकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है 1। सो एटलीस्ट ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और याद भी इजीली रह जाता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट EBIT अपॉन टोटल इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट वो आपको पता है कि हम P&L में से लेते हैं, और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसमें ये नेट प्रॉफिट दिया जाता है। EBIT इट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड नीचे इट मींस इसके डिनोमिनेटर में है टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखा है हाई रेशियो इज फेवरेबल। और इसका जो आंसर आता है वो टाइम्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आया 5, तो आप उसके पीछे लिखोगे टाइम्स, इट मीन्स 5 टाइम्स। अभी इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास नेट प्रॉफिट इतना सारा है कि आप 5 टाइम्स इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, यानी कि 5 टाइम आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, उतना आपके पास नेट प्रॉफिट है। तो ऑब्वियसली ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा फॉर योर कंपनी, राइट। सो हाई रेशियो इज फेवरेबल। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियोज, लास्ट है एक्टिविटी रेशियो। उसमें तो वेरी फर्स्ट डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज। यानी कि डेटर्स रेशियो में आप क्यों फाइंड करते हो
पहले उसकी फॉर्मूला डिस्कस कर देती हूँ और बाद में बताती हूँ। देखो, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। वर्किंग डेज, अभी वर्किंग डेज सम में क्लियर आपको दिया होगा कि कंसीडर 360 days as working days while calculating debtors ratio. Then we take into consideration 360 days. But in the absence of any clarification regarding working days for calculating debtors ratio and creditors ratio both, you have to take 365 days in both the ratios. अपॉन क्रेडिट सेल्स वो भी आपको सब में दिया होगा। एंड हियर रिटर्न दैट लो रेशियो इज फेवरेबल। लो रेशियो क्यों फेवरेबल है? अभी इसका मीनिंग ये है कि आपने जो क्रेडिट पे सेल्स किया है उसका कलेक्शन आप कितने डेज में कर सकते हो। सपोज मैंने 5 लाख का क्रेडिट सेल किया है और मेरा आंसर आया 15 डेज। इट मीन्स व्हाट कि मैंने जो 5 लाख का क्रेडिट सेल्स किया है उसका पेमेंट मुझे कितने दिनों में मिलेगा? 15 डेज। तो वो जितना लो होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश बड़े ही कम टाइम में आ रही है। सपोज इसका आंसर आया 90 डेज। इट मीन्स 3 महीने के बाद विद इन द 3 मंथ आपको ये जो क्रेडिट सेल किया है उसका पेमेंट मिलेगा। इट मीन्स ये कलेक्शन पीरियड क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, ये शो करता है। सो डेटर्स रेशियो जितना लो होगा उतना फेवरेबल होगा। बट क्रेडिटर्स रेशियो की बात करूं तो उसकी फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों यू हैव टू टेक फ्रॉम बैलेंस शीट। क्रेडिट परचेज वो आपको दिया होगा। वर्किंग डेज अगर दिया है तो वो लेना है, और इन द एनी इफ क्लैरिफिकेशन इज नॉट गिवन देन वी टेक 365 डेज। सॉरी, सो क्रेडिटर्स रेशियो जितना हाई होगा उतना ही आपके लिए फेवरेबल है। क्यों? अभी ये दोनों की मैं कंपैरिजन की बात करूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आपने क्रेडिट सेल किया, या मैं डेटर्स रेशियो की बात कर रही हूं, उसका आंसर आया 50 डेज और क्रेडिटर्स रेशियो का आंसर आया 30 डेज। इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो क्रेडिट पे सेल किया है उसका पेमेंट आपको मिल रहा है 50 डेज में। विद इन द 15 डेज आपको उसका पेमेंट मिल रहा है। लेकिन क्रेडिट परचेज का आंसर आया 30 डेज, यानी कि आपको पेमेंट करना है विद इन द 30 डेज। 1 महीने में आपको पेमेंट करना है और करीबन 1.5 महीने में आपका पेमेंट आ रहा है। अभी आपके पास उतनी कैश नहीं है तो आप ये परचेज किया है उसका पेमेंट कैसे कर सकते हो, राइट? सो इसीलिए क्रेडिटर्स रेशियो जितना हाई होगा उतना हमारे लिए फेवरेबल है, एंड डेटर्स रेशियो जितना लो होगा मीन्स कि पेमेंट हमारे पास जल्दी से जल्दी आएगा। पेमेंट कलेक्शन पीरियड जो जितना भी लो होगा उतना हमारे लिए फेवरेबल है। देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसकी फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ एवरेज स्टॉक COGS में लिखा है कि when COGS is not given take sales। कई बार ऐसा होगा कि आपके सम में COGS नहीं दिया होगा, then at that time you have to take sales in numerator। and average stock it means opening stock plus closing stock divided by 2। okay, now if opening stock is not given take closing stock as average stock। पहले हम क्या करते थे, आगे के स्टैंडर्ड में जब आप स्टडी करते होगे आपको एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करना है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आप उसके बदले 0 लिख देते थे या नील, प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है वो, और डिवाइडेड बाई 2 करते थे। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है देन यू डोंट
टेक एवरेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि 0 प्लस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट डिवाइडेड बाय 2, ऐसा नहीं करना है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको ही आपको एवरेज स्टॉक कंसीडर करना है। और यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स और मोर इज फेवरेबल। ओके, सो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। एंड लास्ट फॉर दिस सेशन 3 रेशियो है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड रेशियो है। उसमें फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसकी फॉर्मूला है, देखो टर्नओवर इट मींस सेल्स, वो आपको न्यूमरेटर में लेना है, फिक्स्ड एसेट डिनोमिनेटर में। ये भी हाई होगा उतना फेवरेबल होगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें भी टर्नओवर है, सो सेल्स न्यूमरेटर में एंड टोटल एसेट डिनोमिनेटर में। ये रेशियो भी जितना हाई होगा फेवरेबल होगा। एंड लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसकी भी फॉर्मूला है टर्नओवर वर्ड आया, यानी कि सेल्स न्यूमरेटर में एंड वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे लिखा है हाई रेशियो फेवरेबल। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को आप नेट करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। करंट एसेट में से जो भी करंट लायबिलिटी है वो आप निकाल दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल करंट, नेट करंट एसेट बोल सकते हो। सो दिस रेशियो आपको कंसीडर करना है। नाउ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मैं ये लेक्चर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बट बिफोर दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर से सम स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उससे पहले आप ये सारी फॉर्मूला अच्छे से याद करो, तो जब मैं आपको सम एक्सप्लेन करूँ आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए। इसके लिए ये सारी फॉर्मूला बने इतनी बार रिपीट करना, याद करना। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।